Congress leader and now BJP leader Ashok Chavan, who quit the Congress yesterday, is at the BJP office where he is joining the BJP. Speaking to the media earlier today, he said that this is a new journey that I'm beginning. This was a setback to the Congress, though the fact that Ashok Chavan was going to leave the Congress was known for some time. There had been murmurs and rumors that he was all set to leave, and yesterday finally sending that letter in, resigning from the primary membership of the Congress party. A setback also in terms of optics for the Congress, given that Ashok Chavan was the chief minister of Maharashtra under a Congress government, and to have a leader with, very wide-based ground support quitting so close to elections is a big setback to the Congress party. And further worries for the Congress are also that who is leaving with Ashok Chavan. Already one of the Congress functionaries, not an MLA, but another functionary did resign and is said to be going with Ashok Chavan, though, and there is also speculation that around 12 to 14 MLAs could also be following him, though so far, no clarity on that. The Congress in charge in the state called a meeting of all Congress MLAs and leaders to discuss Ashok Chavan's exit from the party, and the Congress in charge was also to meet with Sharad Pawar, given the Congress is a part of the opposition coalition in the state, the MVA. So the MVA facing setback after setback, and for the Congress, this big setback with Ashok Chavan leaving the Congress party and joining the BJP. So there you can see him at the BJP office with Devendra Fadnavis sitting next to him. And he said that, and he said earlier to the media as well, that I'm going to start a new journey of my political career. Let's go across to Ronak now for more. So Ronak, there we can see Ashok Chavan joining the BJP. And what more can you tell us? A meeting was also called by the Congress party today. देखिए, सबसे पहले तो बहुत झटका कांग्रेस पार्टी की एनडीटीवी ने सबसे पहले दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि अशोक चौहान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कल उनका प्रवेश जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। आज उनका प्रवेश इसलिए जल्दबाजी में किया जा रहा है क्योंकि राज्यसभा की जो नॉमिनेशन की तारीख है वो 15 तारीख है और इसलिए अशोक चौहान को मुंबई में ही उनका प्रवेश जो है वो कर लिया गया और इसके बाद नांदेड़ में एक बड़ी जनसभा अपने समर्थकों के साथ करने की तैयारी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों को बुलाया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मंच पर देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है, बीजेपी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, वे Alright, Ronak, sorry to interrupt you, but Fadnavis is speaking. We're listening in, and you do tell us what he's saying. महाराष्ट्र विधानसभा देशाची लोकसभा ज्यांनी गाजवली, या गिरीश इकडे मागे अनेक वर्ष महाराष्ट्राची विधानसभा, देशाची लोकसभा ज्यांनी गाजवली, विविध मंत्रीपद ज्यांनी भूषविली आणि 2 वेळा महाराष्ट्र की विधानसभा और लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाले, कई बार राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अशोकरावजी चव्हाण साहेब हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करत आहेत। मी सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांना विनंती करेन की त्यांनी अशोकरावांचा प्राथमिक सदस्याचा जो फॉर्म आहे त्याच्यावर सही करून सबसे पहले हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे से ये दरखास्त करूंगा कि पार्टी के जो प्राथमिक सदस्यता का फॉर्म है वो अशोक चौहान जी को दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो प्राथमिक सदस्यता है भारतीय जनता पार्टी की वो अशोक चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे की उपस्थिति में, क्योंकि उनके पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लिहाजा अपनी सिग्नेचर करते हुए यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुळे नजर आ रहे हैं
और फॉर्म जो है उनका यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी कि जो सूत्र बता रहे हैं कि अशोक चौहान मुख्य तौर पर राज्यसभा के उम्मीदवार महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे। जी And Ronak, we can see, it's done. Ashok Chavan is now a member of the BJP. How big of a setback is this for the Congress, given he has a wide-based support? Also, there's speculation that other Congress members may follow Ashok Chavan. बड़ा निश्चित तौर पर इसलिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है क्योंकि अशोक चौहान की अगर बात की जाए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में कई जिलों में न केवल नांदेड़ जहां से वो आते हैं बल्कि आसपास के परभणी जैसे जिले हैं वहां पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। और इस इलाके में जो कांग्रेस के 3 से 4 विधायक है वो भी अशोक चौहान के समर्थक ही माने जाते हैं। फिलहाल तो कोई विधायक पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 12 से 14 ऐसे विधायक है जो कि अशोक चौहान के साथ जा सकते हैं। और आज की जो तस्वीर है राज्यसभा का जो चुनाव महाराष्ट्र में होना है वो निश्चित तौर पर वहाँ पे कांग्रेस की जो सीट है वो अशोक चौहान की बीजेपी में जाने के बाद से खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। जी रौनक, देवेंद्र फडणवीस स्पीकिंग अगेन, लेट्स जस्ट लिसन इन। एक अतिशय निष्ठावंत अशा प्रकारचे पदाधिकारी म्हणून वर्षानुवर्ष त्यांनी काम केलं आहे, त्यांचा देखील या ठिकाणी प्रवेश होतोय। भारत माता की भारतीय जनता पक्षाचा चौहान का बहुत ही कट्टर समर्थक माना जाता है रहा है और ये पहले एमएलसी भी रह चुके हैं और उन्होंने भी आज अधिकृत तौर पर अशोक चौहान के साथ बीजेपी में प्रवेश किया है। कल इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। और अशोक चौहान जिस वक्त मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उस वक्त अमर राजूरकर का जो कद था वो महाराष्ट्र में काफी बड़ा बताया जाता था और उस वक्त जो कई विधायकों से संपर्क करना रहता था तो वाया अमर राजूरकर ही होता था। तो निश्चित तौर पर उनका भी आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है क्योंकि संगठन लेवल पर अमर राजूरकर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कांग्रेस पार्टी में।